Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Tutorpedia. In this video, we are going to cover Unit 7 of Indian Economic Development of class 11th. And the topic is employment, growth, informalization and other issues. So after studying this chapter, the learners will understand a few basic concepts relating to employment such as economic activity, worker, workforce and unemployment. Understand the nature of participation of men and women in various economic activities in various sectors. Know the nature and extent of unemployment. Assess the initiatives taken by the government in generating employment opportunity in various sectors and regions. So let's start the chapter with the intro part. So in the intro part, it has been given that people do a variety of work. Some work on farms, in factories, banks, shops, and many other workplaces. Yet, a few other works at home. Work at home includes not only traditional work like weaving, lace making, or variety of handicrafts, but also modern jobs like programming, work in the IT industry. राइट अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन टॉपिक है जो हम कवर करने वाले वो एम्प्लॉयमेंट है ना। तो इसके अंदर हम घर पे भी काम कर सकते हैं, हम बाहर जाके भी काम करते हैं। तो काम जो होता है, वर्क जो होता है वो इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है ना। अब वाई डू पीपल वर्क, ये तो बहुत ईजी है भाई। अर्निंग, पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग. Some people get or have money by inheriting it and not working for it. This does not completely satisfy anybody. Being employed in work gives us a sense of self-worth and enable us to relate ourselves meaningfully with others. Every working person is actively contributing to national income and hence the development of the country by engaging in various economic activities. That is the real meaning of earning a living. ओके, वी डू नॉट, देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी सेल फुटबॉल्स मेड इन द हाउस ऑफ जलंधर पंजाब। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट चाहे घर बैठे आप कर रहे हो, सेल्फ मेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, या फिर आप बाहर जाके काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं महात्मा गांधी इंसिस्टेड अपॉन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू अ वैरायटी ऑफ वर्क्स इंक्लूडिंग क्राफ्ट। महात्मा गांधी ने खादी जैसे ग्राम उद्योग आप जानते होंगे, तो उसके ऊपर बहुत फोकस किया था कि आपको मतलब अगर कोई विलेज के अंदर या फिर कोई क्राफ्ट्स या फिर है मतलब अलग अलग तरीके के टेक्सटाइल्स, कोई जो गांव के अंदर एक अलग तरीके से बनता है या फिर कोई स्पेशलिटी है तो उसे हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है ना। Studying about working people gives us insights into the quality and nature of employment in a country and helps in understanding and planning our human resource. It helps us to analyze the contribution made by different industry and sector towards national income. It also helps us to address many social issues such as exploitation of marginalized section of the society, child and labor. Now यहाँ तक जो पार्ट था वो बहुत अंडरस्टूड था। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। तो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, हु इज अ वर्कर। ओके, तो अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन अ वर्कर वर्क्स ऑन फील्ड ही और शी प्रोड्यूसेस फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। कॉटन बिकम्स क्लोथ इन टेक्सटाइल मिल्स एंड लोरीज, कॉटन में हाँ ये हो चुका है, कॉटन बिकम्स क्लोथ इन टेक्सटाइल मिल्स एंड इन पावर लूम्स. Lorries transport goods from one place to another. We know that the total money value of all such final goods and services produced in a domestic year. तो ये this needs to be highlighted. The total money value of all such final goods and services produced in a country in a year is called its gross डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर ना। तो व्हाट इज जीडीपी, से जीडीपी भी बोल सकते हैं। जीडीपी क्या हो गया, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल सच फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ ईयर। देखो ये इन अ ईयर वाली जो चीज़ है वो भी यहाँ पे हाईलाइटेड है। आगे क्या है आपके पास, व्हेन वी ऑल्सो कंसीडर what we pay for our imports and get from our export, we find that there is a net earning for the country which may be positive
if we have exported more in value terms than imported, और नेगेटिव इफ इम्पोर्ट एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स। नाउ यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, एक बार इसको समझ लेते हैं हम। यहाँ बोल रखा है कि हम लोग इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के तरीके से। इंपोर्ट्स के लिए हम अगर हमें इंपोर्ट करना है बाहर से तो व्हाट वी डू इज वी पे, एंड इफ़ वी वांट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बदले हमें क्या मिलेगा, हमें अर्निंग या इनकम मिलेगी। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव कब कहलाएगा, देखो ये चीज़ पॉजिटिव हो सकती है व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, राइट, एंड इट कैन बी नेगेटिव व्हेन वी आर इंपोर्टिंग मोर देन द एक्सपोर्टिंग। सो नेगेटिव कब होगा आपके पास, जब हमारे पास इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। I hope this is clear. When we add this earning from foreign transactions, what we get is called the country's gross national product for that year. Now this topic, ये अलग से हमारे पास एक टॉपिक है, वो चीज़ हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ओके, तो आगे क्या है आपके पास यहाँ पढ़ने के लिए, वो देख लेते हैं हम लोग। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेड. Some get employment throughout the year, some other get employed for only a few months, ये हमें जानते हैं। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है वो देख लेते हैं हम लोग। अब ये बता रखा है कि जो लेबर्स होते हैं ना, वो उसमें वुमेन्स भी हैं, मेंस भी है, चाइल्ड भी है, तो इन सबको हम लोग वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है ना, वर्कफोर्स को। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। दिस रेशियो इज यूजफुल इन नोइंग द proportion of population that is actively contributing. What does it say? Actively contributing to the production of goods and services of a country. If the ratio is higher, first we need to discuss about this. What is workers population ratio? ये क्या है? It is an indicator which is used for analyzing employment situation, है ना। तो if the ratio is higher, it means that the engagement of people is greater. If the ratio for a country is medium or low, it means that a high proportion of its population is not involved directly in economic activity. ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज, नाउ अब इसमें ये चीज़ दे रखी है तो हमें इसको भी पढ़ लेना चाहिए। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम रिपीटिंग इट, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिजाइड्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप दिस इज क्लियर। आगे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको। अब यहाँ पे टू नो द वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो ऑफ इंडिया, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन इन इंडिया एंड मल्टीप्लाई इट बाय। तो देखो यहाँ पे आपको किस तरीके से इसने बना रखा है, देख इस तरीके से लिख के देख लेते हैं। अगर हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो चाहिए तो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड टोटल नंबर of workers in India, okay, upon, हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो ये हमारे पास वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो हो गया। आई होप ये भी क्लियर होगा हमें। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से डेटा के तरीके से दे रखा है कि हमारे पास जो वुमेन, देखो यहाँ पे अब वो जो दे रखा है ना ऊपर, वो सारा यहाँ पे मिल जाएगा। मेन जो है टोटल में इतने वर्किंग पॉपुलेशन में, और वुमेन इतने सी है। और रूरल के अंदर इसमें 51% जो है मेन काम करते हैं, 53% अर्बन में काम करते हैं, जबकि वुमेन्स जो है 17.5%, 17.5% रूरल एरियाज में काम करती हैं, और 14.2 अर्बन की जो वुमेन्स है वो काम करती है। तो ये हो गया वर्कर्स पॉपुलेशन रेशो। अब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विच इज क्रिएटेड बाय द पर्सन इटसेल्फ।
राइट। तो जैसे कि फार्मर्स हो गए, वो अपने खेतों के अंदर लेबर्स रख रहे हैं, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पे ब्रिक्स मेकिंग अ फॉर्म ऑफ कैजुअल वर्क, है ना। तो वो तरीके के हो सकते हैं कि हायर कर सकते हैं अपने काम के लिए, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो जैसे बिजनेस घर के अंदर ही। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट पेपर दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। तो मेल वर्कर ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। उसके अंदर ये देखो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय ज़्यादा है, कैजुअल वर्कर्स कम है। फीमेल वर्कर्स के अंदर आपके पास जो ये है कैजुअल वेज वर्कर्स है, वो मतलब ज़्यादा ही, सेकंड मीडियम पे बोल सकते हो आप। 52% रेगुलर सैलरीड है, कैजुअल वेज लेबर सबसे कम है। ओके, तो ये तो हमें पता होगा। देखो आप यहाँ वर्कर्स हु ओन्स, अब देखो एक मिनट, यहाँ पे हमें थोड़ी सी डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो वी नीड टू लर्न दिस। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लिवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, देन आगे क्या गिवन है हमें, आगे गिवन है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर नोन एज कैजुअल वेज लेबरर्स। उसके आगे आपको गिवन है यहाँ पे रेगुलर सैलरीड। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ये वन लाइन, व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज एंड पेड हिज और हर वेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर नोन एज रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज। तो जो 11th क्लास में है उनके लिए हो सकता है कि ये एज अ डेफिनेशन आ जाए। वी हैव कवर्ड दैट ऑल्सो। अब इसके आगे आपके पास क्या है हम देख लेते हैं। अब है एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स एंड फैक्ट्री एंड ऑफिस। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर वुमेन्स एम्प्लॉयड है ना। तो अब आपके पास अलग अलग हो जाता है। अब वर्किंग पर, अब देखो ये अलग अलग चीज़ में आ गए, दे आर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिविजन्स करी हुई है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हिसाब से। तो हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। This shift can be understood by looking, generally we divide all economic activities into 8 different industrial divisions. They are agriculture, mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas and water supply, construction, trade, transport and storage and services. For simplicity, all the working person engaged in these divisions can be clubbed into 3 major sectors: primary, secondary, tertiary sector. Means सर्विस सेक्टर। अगर किसी को टर्शरी सेक्टर की स्पेलिंग नहीं आती हो तो आई एम राइटिंग इट डाउन। सो टर्शरी सेक्टर्स हो गए हमारे पास। अब प्राइमरी सेक्टर्स में क्या होंगे, जो मतलब आप बोल सकते हो फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर आपको परसेंटेजेस के अंदर देखना है तो ये आपके लिए चार्ट सही है। अब आ जाते हैं आगे, ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर आपको बता रखा है कि भाई पहले जीडीपी के अंदर कितना हिस्सा था काम का, अब कितना ही। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई पहले के टाइम से आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आपके पास, देखो उस पूरे को पढ़ने से अच्छा है आप इस ग्राफ को पढ़ेंगे। तो इस ग्राफ में क्या दे रखा है हम देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं। अगर आप 1951 का चार्ट पेपर देखोगे तो व्हाट इज दिस, ये है आपका एम्प्लॉयमेंट का परसेंट इतना ही था और जीडीपी आपकी इतनी थी। और आज के टाइम पे, बीच में तो चलो फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे ये कितना है, इतना। और मतलब आज के टाइम पे कौन सा डेटा दे रखा है, 2010-12 की बात हो रही है और आपका जीडीपी है 7.8। तो ऑब्वियस सी बात है उससे तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है हमारी, है ना। इवन दो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है अभी भी। अब हर एक सेक्टर के अंदर अलग अलग क्या है, ये हमारे लिए पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है हमें, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या दे रखा है इन द प्रीवियस सेक्शन। अच्छा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया सिंस has been provide decent livelihood to its people. It has been envisaged that the industrialization strategy would bring surplus workers from agriculture to industry with better standard of living as in developed countries. We have seen, अब ये सब चीज़ें आपको दे रखी है, फॉर्म्स, ट्रेड यूनियंस, बार्गेन्स। एक मिनट, इन मुझे इनफॉर्मलाइजेशन जो है ना वो आपको मेन समझाना है। अगर यहाँ पे मिल जाता है आपका तो ओके। यहाँ पे आपको बता रखा है ट्रेड यूनियंस बना लेते हैं। हु आर दे, तो दीज आर द एम्प्लॉयर्स एंड दे बार्गेन्स फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। All the public sectors and establish and those private sector establish which employ
ओके, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, वो देख लेते हैं वापस से। All the public sector establishments and those private sector establishments which employ 10 hired worker or more are called formal sector establishment, and those who work in such establishment are formal sector workers. Okay, thus अब देखो, all other enterprises and workers working in those enterprises form the informal sector. Thus, informal sector includes millions of farmers, agriculture laborers, owners of small enterprises, and people working in those enterprises who are also self-employed. तो आप ये चीज़ बोल सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मलाइजेशन? इनफॉर्मलाइजेशन मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया। एक फॉर्मल मतलब आप किसी फॉर्मेलिटी के साथ, आपको पता है ये, आपको बोला जाता है ये करना है ये करना है। इनफॉर्मल मतलब आप खुद अपना काम कर रहे हो, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। फार्मर्स जैसे हो गया, उनको पता है किस तरीके से काम करना है। ये देखो, जैसे इन आपके पास यहाँ पे रोड साइड वेंडिंग एंड इंक्रीजिंग वेराइटी ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट, राइट। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इनफॉर्मल और फॉर्मल के अंदर, इनफॉर्मल के अंदर आपके पास इस तरीके से मेल की और फीमेल का हिस्सेदारी बढ़ी है। ओके, आगे क्या दे रखा है आपको, ये दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको, आप देख सकते हैं इसको। और अनएम्प्लॉयमेंट, इफ़ वी विल टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें यही चीज़ बोली हुई है आपको कि कई लोग जो होते हैं उनको काम ही नहीं मिलता है ना। अब जैसे कि एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, मैं चाहती हूँ आप ये साइन अप करें, मार्क कर ले, अंडरलाइन कर ले। NSSO defines unemployment as a situation in which all those who due to owing मतलब due to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends or relatives, or by making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of work and remuneration. There are a variety of ways by which an employment person is identified. Now, economist ने कैसे define कर रखा है? Economists define an unemployed person as one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day. There are 3 sources of data on unemployment. I think this is very important, so you need to start it. Report of Census of India, National Sample Survey Office report of, यही है आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर डेटा प्रोवाइड करवाती है। और एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर Force Survey and Directorate General of Employment and Training, their data of registration and exchange, employment exchange. Though they provide different estimates of unemployment, they do provide us with the attribute of the unemployment and the variety of unemployment prevailing. What do you mean by what we have different types of, okay, sorry, do we have different type of unemployment in our economy? The situation described in the first para of this सेशन इज कॉल्ड ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है हमारे पास? इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया फॉर्म एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ I remember this is a very important topic for 11th class student. What is disguised unemployment? जैसे कि इसमें आपको, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक काम एक जने से हो सकता है, राइट, एक जने से जो काम हो सकता है उसे 3-4 जने मिलके कोई काम कर रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी, एक काम जो एक जने से हो सकता है उसे अगर 3 लोग मिलके कर रहे हैं, तो ये जो 2 लोगों का एफर्ट है इज नोन एज, और जो 2 लोग आपके एक्स्ट्रा बचे हैं आर नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, इसे कहते हैं। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं, सपोज अ फार्मर्स हैज 4 acres ऑफ लैंड एंड ही एक्चुअली नीड्स ओनली 2 workers and himself to carry out various operation on his farm in a year, but if he employs 5 workers in his family members also, तो this situation is known as disguised unemployment। तो आगे देख लेते हैं,
गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थिंग्स। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी स्कीम्स लेके आए हैं, है ना, वो अगर यहाँ पे दे रखा है तो अलग अलग तरीके से कंक्लूजन आ गया है यहाँ पे तो हमारे पास। तो उन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, many programs that the government implemented aimed at alleviation poverty हमने ये चीज़ कवर किया था। तो employment generation, they are also known as employment generation programs. All these programs aims at providing not only employment but also services in areas such as primary health, primary education, rural drinking water, अगर rural drinking water, nutrition, assistance for people to buy income and employment generating assets, development of community assets by generating wage employment, construction of houses and sanitation, assistance for construction houses, laying of rural, ये सब हमने पढ़ा था। अगर किसी ने अभी तक मेरा पोवर्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाके देखिएगा। ये आपको NCERT क्लास 11th की प्लेलिस्ट में मेरे मिल जाएगा। मैंने पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। इसमें 2 चैप्टर्स और बाकी है जो कि बहुत ही इजी है, और ये चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हम कंक्लूजन के ऊपर आ चुके हैं। तो कंक्लूजन के बाद वी नीड टू रीड आउट द रिकैप्स। मैं हमेशा रिकैप्स पढ़वाती हूँ, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है, ऑल दोज पर्सन हु आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज hence contribute in GNP workers. About 2/5 of the total population is engaging in different. Men, particularly rural men, form the major section of workforce. Majority of workers in India are self-employed. Casual wage laborers and regular salaried employees together account for less than half the proportion. About 3/5 of India's workforce depend on agriculture and other allied activities. आगे आपके पास कि द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ accelerated during post-reform period. India has been witness to employment opportunities in the service sector. These new jobs are mostly in informal. Government is the major formal sector employer in the country. Disguised unemployment is a common form of unemployment. There has been change in the structure of workforce. Through various schemes and policies, the government take initiatives to generate employment directly and indirectly. So yeah guys, that's it for today. और मैं आपके लिए ये अनाउंसमेंट लेके आई हूँ कि मैं बहुत जल्द और नेट मैं आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स प्रोवाइड करवा सकती हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन नेट की ट्यूशन्स के लिए इंटरेस्टेड है तो वो नीचे नेट की ट्यूशन्स, राइट, हम लोग ये कवर कर लेंगे। ये आपकी 3 महीने की होगी ट्यूशन, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे ये चीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग एक बार अगर मुझे इस चीज़ का अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा इस ट्यूशन का तो मैं आपको, और मैं ये चीज़ बता सकती हूँ आपको, मैं बहुत कम फीस के अंदर आपका पूरा का पूरा, बहुत कम मतलब नेग्लिजिबल फीस है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट क्लियर करो। तो अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नेट ट्यूशन। So that's it for today guys. I hope this video was helpful to you. Thank you.